हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jayo Radha Gopinath Radhe. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada.
Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Premanande. Om Agyantimirandasya Gyananjanashrakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishnakamritamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. हिंदी राइट। आप सभी का आभार है कि आप यहाँ पे सब एकत्रित हुए और मुझे आप लोगों का संग लेने का मौका मिला। आज हम साख्यम मैत्री के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो ज़्यादातर इस्कॉन में कभी चर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से कितने लोगों ने कल का मेरा भागवतम क्लास सुना? यहाँ से कोई है? ठीक है, तो आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो कल का कंटिन्यूएशन है। तो आप लोग जो बाकी है, जो नहीं सुने हैं, वापस जाके आप कल का चौपाटी में भागवतम क्लास सुन लीजिए, तो आपको आज का कॉन्टेक्स्ट बराबर समझ में आएगा। इस्कॉन में जुड़ने से पहले हम सभी के दोस्त होते थे, है कि नहीं? इस्कॉन में आने के बाद सभी के कलीग्स हो गए। मतलब ज़्यादातर लोग जो है समझ में नहीं आता है कि दोस्ती बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती जो है वो थोड़ा सा एक इनफॉर्मल होता है। लेकिन वैष्णवों के बीच में जब दोस्ती होता है थोड़ा सा अपराध भी आ जाता है बीच में, है ना? तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है, दोस्त है कि नहीं दोस्त है कि नहीं? तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाता है, बट एट द सेम टाइम गहराई की ज़रूरत है। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हमें संबंध स्थापित करने चाहिए भक्ति के दायरे में रहते हुए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक गहरा एनालिसिस देने वाला हूँ दोस्ती के बारे में। शायद ही आप लोगों ने ऐसा कुछ एनालिसिस सुना होगा कि हम दोस्ती के बारे में थोड़ा सा इतना डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और
ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चित्त मदगद प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है साख्यम के बारे में ही बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भक्तों के बीच में जब बातचीत होती है उसमें एक प्रकार का गहराई होना चाहिए जिससे हमें संतुष्टि मिले और एक आनंद मिले। तो हमें ये समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, दोस्ती का मतलब क्या होता है। मैंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप। ये किताब मैंने खास टीनेजर्स के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वही किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो अडल्ट्स के लिए भी, स्पेशली भक्तों के समुदाय में काफ़ी हद तक लागू होता है। तो मैं उसमें से एक छोटा सा एक भाग लेना चाहूँगा जिस पे हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश में जब हम किसी को दोस्त बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं, है ना? एक कॉमन वर्ड है। लेकिन संस्कृत में जब हम किसी को दोस्त बुलाते हैं तो उसमें एक नहीं 4 अलग अलग प्रकार के वर्ड्स हैं जो हमको बताता है कि आपकी दोस्ती कितनी गहरी है। तो इंग्लिश में फ्रेंड बोला तो सब फ्रेंड हो गए, इसमें कोई गहराई के बारे में बात नहीं होती है। लेकिन संस्कृत में वही शब्द को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। हाँ, और मैं जैसे इन शब्दों को प्रमाण करूँगा आपको समझ में आएगा कि ऐसे होता है। पहला शब्द है बंधु। बंधु का मतलब क्या है? एसोसिएट्स, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं हमारे साथ, या जो हमारे घर के आजू बाजू में रहते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, ये सब हो गए बंधु। बंधु मतलब क्या होता है? बंधु जो है सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप होता है। तो आपके पास कितने बंधु होने चाहिए? जितने ज़्यादा बंधु है उतना अच्छा है आपके लिए। 1000 बंधु हो सकते हैं, मतलब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर है कितने बंधु आपके है कि नहीं। किसी के 1000 हो सकते हैं, किसी के 2000। आपके जो सारे फ्रेंड फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट है वो सब बंधु है। हम फ्रेंड बोलते हैं लेकिन एक्चुअली फ्रेंड नहीं है, वो बंधु है। मतलब बंधु मतलब क्या है? आपका नेटवर्क। आपको कोई समस्या है, आपको कोई डॉक्टर चाहिए, फ़ोन करके किसी को फ़ोन कर सकते हो, आपको तुरंत मिल जाएगा, वो आपका नेटवर्क है कि नहीं। आपको कोई प्रिंटर चाहिए, फ़ोन करो, आपको प्रिंटर मिल जाएगा। आपको कोई प्लम्बर चाहिए, मतलब किसी न किसी को फ़ोन कर सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा। कुछ ना कुछ जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल नीड्स है, उसके हिसाब से इतने सारे दोस्त होंगे तो इतने अच्छी है, आपके प्रैक्टिकल डे टू डे नीड्स के लिए काम आता है। इसको बंधु बोलते हैं। बंधुओं का खासियत क्या है? बंधुओं को आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस्कॉन में जाते हैं, साथ में नाचते हैं, कीर्तन में, क्या सब दोस्त हो गए? नहीं, सब बंधु है, कलीग्स, दे आर आवर नेटवर्क। हम इन सबको जानते हैं, हरिबोल बोलते हैं, लेकिन हम हृदय से एक दूसरे को पहचानते नहीं है, हृदय से एक दूसरे को जानते नहीं है, गहराई का कोई दोस्ती नहीं है। इसको बंधु बोलते हैं। बहुत लोग इन बंधुओं को अपना दोस्त मान लेते हैं। एक आदमी के पास 2000 फ्रेंड्स थे फेसबुक में और वो मर गया। उसके फ्यूनरल में 2 लोग आए तो उसकी पत्नी सोचने लगी, यार 2000 लोग, बाकी लोग किधर गए? थे ही नहीं, क्योंकि हृदय का कोई कनेक्शन था ही नहीं पहले से, वो क्यों आएंगे वो लोग, है कि नहीं। तो ये पहला कैटेगरी के लोग हैं बंधु। कितने बंधु होने चाहिए? कितने, जितने भी हो सकते हैं चलता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने ज़्यादा बंधु है उतना अच्छा है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जो है, जो बंधु बनते हैं आपके, थोड़ा सा और गहराई से आपको जानना चाहते हैं, वो दूसरे लेवल के दोस्त बन जाते हैं, उनको बोलते हैं सखा। बंधु और सखा में अंतर क्या है? बंधु और सखा में इतना अंतर है कि बंधु को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सखा को थोड़ा सा इंटरेस्ट है। आपके हालचाल पूछेंगे, आपका घर परिवार क्या है पूछेंगे, आपके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट आपका नाम याद रखेंगे। तो थोड़ा सखा जो है, थोड़ा सा डीपर कनेक्शन होता है, उसका नंबर भी आपके पास रहेगा
और उससे उसके परिवार में कितने लोग हैं आपको मालूम पड़ेगा, वो क्या करता है मालूम है। तो वो थोड़ा सा गहराई का दोस्ती है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है वो समझ में आएगा उस व्यक्ति को। तो ये सब जो है सखा कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन तो अगर आपके पास 1000 बंधु है तो आपके पास एक 40-50 सखा हो सकते हैं। लेकिन ये सखा जो है इसके ऊपर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो। जब आपको सबसे बड़ा जरूरत है ये सखा गायब हो जाएगा। आप बोल नहीं सकते अरे यार ऐसे कैसे गायब हो गया जब जरूरत है, क्योंकि वो दोस्ती जो है इतनी गहरी नहीं है। तीसरा लेवल का कैटेगरी ऑफ दोस्त है, उसको बोलते हैं प्रिय सखा। इसको कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड बोलते हैं। तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो सखा से प्रिय सखा कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आपको आपसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको मालूम है आप क्या करने वाले हो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है सब मालूम है। ये कैटेगरी के लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ मालूम नहीं है, आपके वीकनेस भी मालूम है। और ये कैटेगरी के लोग दुश्मन बन गए तो सब खतरनाक दुश्मन बन गए, क्योंकि सब सीक्रेट मालूम है आपको। लेकिन ये कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ हमेशा रहेंगे। इनको प्रिय सखा बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स। अगर आपके पास 1000 बंधु है, एक 40-50 सखा हो सकते हैं। प्रिय सखा 4 या 5 ही होंगे आपके जीवन में। 4-5 प्रिय सखा है आपके जीवन में तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। और इस कैटेगरी के लोग होने चाहिए हमारे जीवन में। जब शौबरी मुनि वृंदावन में आए थे और उस तालाब के अंदर वो तपस्या कर रहे थे, आप सभी को शौबरी मुनि की कहानी मालूम है। वो एक बड़े मुनि थे और वो पानी के अंदर तपस्या करते थे। क्यों पानी के अंदर तपस्या करते थे? क्योंकि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये बस अंदर जाके बैठ के जपा करना है। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं? तो शौर्य मुनि जो है पानी के अंदर चले गए और तपस्या करने लगे। थोड़े समय के बाद वहाँ पे गरुड़ जी आए, वो अपना काम करने के लिए आए, फिशिंग करने के लिए आए। तो शौर्य मुनि को 2-3 मछली जो है जाके बोले शौर्य मुनि को, ये गरुड़ जो है हमें बहुत सता रहे हैं, आप उनको कुछ कीजिए। शौर्य मुनि को बहुत गुस्सा आ गया, बोले मेरे तालाब में गरुड़ कैसे आया? उसको श्राप दे दिया कि वापस कभी यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कभी कभी हम लोग शौर्य मुनि जैसे बन जाते हैं। बहुत सारे जूनियर्स है, एक इक्वल या सीनियर आने की कोशिश करता है तो भगा देते हैं। तो जूनियर्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जूनियर जो है आपको आदर देता है, सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, आपकी अच्छाई करता है, हमेशा आपकी बुराई कभी नहीं करता। आपने गलती भी किया उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा गलती किया आपने। तो ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। सीनियर्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सीनियर कभी कभी आते हैं, महीने में एक बार आ गए, 2-3 महीने में एक बार आ गए, तो थोड़ा सीनियर कभी कभी हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम कौन रहता है आपके जीवन में? इक्वल्स रहते हैं। लेकिन ये इक्वल्स के साथ रहना आसान नहीं है, क्योंकि जूनियर जो है आपकी गलतियां देख नहीं पाते, उनको मालूम भी नहीं है आप क्या गलती कर रहे हो। सीनियर बहुत कम समय के लिए आते हैं तो आपकी ज़्यादा गलती देख नहीं पाते हैं। हमें गलती कब करते हैं हम लोग? थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए कोई ऑब्जर्व करेगा तब हमारी गलती पकड़ी जाएगी, है कि नहीं? लेकिन जो इक्वल है हमारे साथ ही घूमता रहता है, सब मालूम है उसको। और इसलिए हम इक्वल्स को अवॉइड बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत फीडबैक देते हैं, बहुत गलतियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये इक्वल्स जो है इनमें ही कैपेसिटी है आपको आगे बढ़ाने की। इसलिए हमारा 70% जो एसोसिएशन है, एटलीस्ट 60% एसोसिएशन जो है इक्वल्स का होना चाहिए। 20% जूनियर, 20% सीनियर, लेकिन 60% जो है इक्वल्स का संग होना चाहिए। तो तब जाके डीप कनेक्शन बनता है। प्रिय सखा वो लोग हैं जो आपकी गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन आपको नीचे खींचने के लिए नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए। आपको अगर वो गलती ढूंढ के बताते भी है
तो उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो आप कैसे रहेंगे। शौबरी मुनि गरुड़ जी को अंदर नहीं आने दिए, लेकिन वो दो मछलियां, उन दो मछलियों की वजह से उनका रिवोल हो गया, है कि नहीं। तो ही डिडंट वांट इक्वल एसोसिएशन, ही डिडंट वांट सीनियर एसोसिएशन, ही ओनली वांटेड जूनियर, तो जूनियर की वजह से गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। तो इक्वल एसोसिएशन, ये जो प्रिय सखा कैटेगरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है। हम सभी को मेहनत करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ प्रिय सखा के साथ एक अच्छा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। प्रिय सखा वो लोग हैं जिनके साथ आपका हृदय का संबंध होता है, और प्रिय सखा इस प्रकार के लोग हैं जो आपको इतने अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप 25 साल तक भी एक दूसरे के साथ बात नहीं किए, 25 साल के बाद बात किए पहली बार, ऐसा लगता है कि कल ही किया बात। इतना गहराई का संबंध बन जाता है प्रिय सखा के साथ। और प्रिय सखा वो लोग हैं जो आपके दुख और सुख में साथ रहते हैं। अगर आप बहुत ही खुश हो, कुछ हासिल किए, कुछ लाभ हुआ आपको, कुछ भी आपको एक खुशखबरी है आपके जीवन में, आप किसके साथ पहले शेयर करोगे? यूजुअली वो प्रिय सखा है जिसके साथ आप पहला बात करना चाहेंगे। और जब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा दुख की बात हुई, वो प्रिय सखा ही है जिनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हो, जिनके साथ आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ऐसा एक तो व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, या कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके साथ आप आजीवन संबंध बना के रखो। तो मैं देखता हूं कि इस्कॉन में ये बंधु और सखा तो बहुत है, लेकिन ये प्रिय सखा जो है, भक्तों के बीच में प्रिय सखा लेवल का कनेक्शन जो है बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। क्योंकि हम समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ सत्संग में, और सत्संग में समय किधर होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए? सत्संग में समय किधर है? कीर्तन में समय जाता है, कथा में समय जाता है, प्रसाद में समय जाता है, बहुत ही कम समय मिलता है एक्चुअली एक दूसरे के साथ गुह्य बातें करने के लिए। तो इसलिए समय अलग से निकालना पड़ता है। बहुत बार हम इस्कॉन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कुछ गहरा संबंध एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसलिए हर व्यक्ति को, ये सब सोशल नीड्स है। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्त बन गए तो हमारे सोशल नीड्स निकल जाते हैं, हमारी ये जो ज़रूरतें हैं वो निकल जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें सत्संग के आगे भी समय बिताना चाहिए भक्तों के साथ, और कुछ भक्तों के साथ समय बिताना चाहिए जिनके साथ हम गहरे संबंध एस्टैब्लिश कर सके। और चौथा है सुहृद, ये चौथा लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है। जैसे महाभारत में कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संबंध था उसको सुहृद बोलते हैं। सुहृद मतलब एटलीस्ट हमारे जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिनके साथ हम सलाह मशवरा कर सके, जिनके साथ हम जिनसे हम कुछ जो शिक्षाएं हैं या कुछ एडवाइस है, कुछ टिप्पणियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, उसको सुहृद बोलते हैं। कम से कम जीवन में एक तो सुहृद होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम। वो सुहृद आपके गुरु हो सकते हैं, वो सुहृद आपके मेंटर या काउंसलर हो सकते हैं, वो सुहृद आपके माता पिता हो सकते हैं, वो सुहृद आपके कोई गुरु भाई हो सकता है, गुरु बहन हो सकते है, कोई भी हो सकता है, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो और जो आपके लिए समय देने के लिए तैयार है। आप ऐसा सुहृद को ढूंढ लोगे जिसको आपके पास समय देने के लिए टाइम ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। आप मेल लिख रहे हो, 3 महीने के बाद जवाब आता है, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो सुहृद मतलब वो व्यक्ति जो अप्रोचेबल होना चाहिए, जिनके साथ आप एक फ़ोन कॉल, एक दिन के अंदर आप बातचीत कर सकते हो, वो एक सुहृद, एक मेंटर कनेक्शन होना चाहिए, इसको हम सुहृद बोलते हैं। तो हम जितना समय हमारे जीवन का है, हम जितना समय सुहृद और प्रिय सखा के साथ बिताएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है और अपने मानसिक संतुलन के लिए भी अच्छा है। और जितना समय हम बंधु और सखा के साथ समय बिताएंगे वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, आपके नेटवर्किंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके हृदय के लिए, आपके मन के लिए और आपके आध्यात्मिक भक्ति के लिए तो बिल्कुल उतना उपयोगी नहीं है।
तो हम सभी को ये डीपर लेवल ऑफ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी सवाल ये होता है कि कैसे चुनें अपने दोस्तों को। मैं आपको अभी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये पंचतंत्र की कहानी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल कहानी है, लेकिन बहुत गहरी और बहुत ही डीप कहानी। मैंने आपको लास्ट टाइम मंकी क्रोकोडाइल की कहानी सुनाया था क्या? आई डिडंट। तो पंचतंत्र की कहानी है। हम लोग कभी कभी ये पंचतंत्र किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि बच्चों का किताब है। एक्चुअली पंचतंत्र जो है बहुत ही एडवांस लेवल का किताब है, बहुत ही डीप लेवल का किताब है। उसमें से एक कहानी मैं बताना चाहूँगा, और इस कहानी से हमको क्या महत्वपूर्ण सीख मिलता है आप समझने की कोशिश कीजिए। इस कहानी में एक बंदर होता है जिसका नाम है रक्तमुख। ये बंदर जो था एक पेड़ के ऊपर रहता था जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट फल उगते थे, बेरीज उगते थे। तो ये बंदर ये फल खाता रहता था और वहाँ पे बहुत खुश था। एक दिन बंदर ने देखा कि उसके पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया है और बैठा हुआ है। तो बंदर को लगा ये मेरा गेस्ट है, इसको थोड़ा खिलाना चाहिए, कोई आपके घर आता है तो कुछ तो खिलाना चाहिए। तो बंदर ने मगरमच्छ के मुंह के अंदर कुछ बेरीज फेंक दिया, कुछ फल फेंक दिए। तो मगरमच्छ ने खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने पूछा और मिलेगा क्या? बंदर ने और फेंका। तो धीरे धीरे जो है मगरमच्छ और बंदर जो एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। रोज ये मगरमच्छ जो है यहाँ पे आता था खाने के लिए स्वादिष्ट फल, और ये बंदर के साथ बातचीत करने के लिए। इस मगरमच्छ का नाम था करलमुख। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन आया जब इस मगरमच्छ की पत्नी ने उसको पूछा, अरे रोज रोज तुम किधर गायब हो जाते हो इतने घंटे? तो ये मगरमच्छ ने कहा, मुझे एक नया दोस्त मिल गया है, बंदर है, ये मुझे बहुत अच्छे फल खिलाता है। अगले दिन जो है ये मगरमच्छ ने अपने पत्नी के लिए बहुत सारे फल लेके आए। पत्नी ने खाया और उनको बहुत अच्छा लगा, फल बहुत स्वादिष्ट था। तो पत्नी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि ये बंदर जो है रोज इतने मीठे फल खाता है तो इसका हृदय कितना मीठा होगा। उसने कहा, मुझे इसका हृदय को खाना है। ये मगरमच्छ ने कहा, हम दोस्त को ऐसे खा नहीं सकते। बोले, कुछ नहीं, अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो बंदर का हृदय लेके आओ। अभी पत्नी ने ऐसा कह दिया तो अभी पति और कुछ कर ही नहीं सकता है। सीधा ये मगरमच्छ पहुंच गया बंदर के पास। तो उसने बंदर को कहा, देखो रोज रोज हम यहाँ पे इस पेड़ पे मिलते हैं, आज हम लोग अंदर पानी के अंदर जाते हैं, मैं आपको सैर कराता हूँ पानी का। तो बंदर कूद गया मगरमच्छ की पीठ पे और ये नदी के बीच में पहुंच गए। और नदी के बीच में पहुंचने के बाद ये मगरमच्छ को लगा ये बंदर को सच बताना चाहिए, ये मरने से पहले सच तो जान सकता है। तो इसने कह दिया, ये कोई जॉय राइड नहीं है, ये आपका लास्ट राइड है। मेरी पत्नी जो है आपका हृदय खाना चाहती है। तो बंदर को समझ में आ गया कि मैंने अभी कुछ किया नहीं तो मेरा हरिबोल होने वाला है। तुरंत उसने चालाकी से कह दिया मगरमच्छ को कि अरे आपने क्यों नहीं बताया, मैंने तो मेरा हृदय पेड़ पे रख दिया, वहां पे रख के आता हूं मैं। तो मगरमच्छ थोड़ा सा बुद्धू था, उसको समझ में नहीं आया। वो बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि उसकी पत्नी ने बहुत क्लियरली बताया था कि उसको बंदर के हृदय को खाना है। तो ये मगरमच्छ पानी के बीच में उसके पसीने छूट रहे। तो बंदर ने कहा, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे वापस पेड़ पे, मैं हृदय को लेकर आ जाऊंगा और वापस आपके घर जाएंगे। तो ये घूम गया और ये बंदर पेड़ के पास पहुंचा और पहुंचते ही पेड़ के ऊपर छलांग मार के कूद गया। और वहां पेड़ के ऊपर बैठने के बाद उसने एक संस्कृत का श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला मालूम है? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये श्लोक पंचतंत्र का श्लोक है और ये श्लोक बंदर ने इस मगरमच्छ को बोला। कहाँ का आप लोग पहचाने इस श्लोक को? किधर है ये श्लोक? हाँ, उपदेशामृत में है। लेकिन उपदेशामृत में आया पंचतंत्र से। रूप गोस्वामी ने अलग अलग जगह से 11 श्लोक इकट्ठा किए उपदेशामृत में, उसमें से एक श्लोक जो है पंचतंत्र का श्लोक है। और ये श्लोक मगरमच्छ को बंदर ने सुनाया। और ये सुनाते हुए बंदर कहता है मगरमच्छ को, अगर किसी के साथ आपको गहराई का संबंध बनाना है तो 6 चीज करना पड़ेगा। क्या है? ददाति प्रतिगृणाति, उनको गिफ्ट्स दो,
और उनसे गिफ्ट रिसीव करो। गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप अपना हृदय उनको बताओ और उनका हृदय जो है आप सुनो। और भुंक्ते भोजायते चैव, मतलब उनको अपने घर बुलाओ खाने के लिए और आप उनके घर जाओ खाने के लिए। तो ये 6 चीज़ें जो है प्रीति लक्षणम, ये जो है दो लोगों के बीच में जो प्रेम है, प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन ये मगरमच्छ को बंदर बताता है ये 6 चीज़ें जो है सबके साथ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए जो स्वजातीय हो। तो अगर आपने रूप गोस्वामी का उपदेशामृत पढ़ा हो तो वहाँ पे प्रभुपाद ये स्वजातीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्वजातीय मतलब क्या है? वहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे स्वजातीय वैष्णव। हम लोग को जब इस्कॉन में आते हैं हमको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई जाति का भेदभाव नहीं है ना। तो किसी ने आपका कास्ट पूछा क्या इस्कॉन में आने से पहले, कौन से कास्ट के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन से क्रीड के हो, कोई पूछता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग आत्मा के स्तर पे ये आंदोलन बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने, तो यहाँ पे कोई कास्ट क्रीड का संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी स्वजातीय वैष्णव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जाति जो है एक शरीर का लेवल का जाति नहीं है। ये स्वजातीय वैष्णव मतलब सोच विचार का है। स्वजातीय मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको लाइक माइंडेड बोलते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाना चाहिए जिनका सोच विचार आपसे मिलता जुलता है। सबका सोच विचार आपसे मिलता जुलता नहीं है कि नहीं? तो कुछ लोग होंगे जिनका सोच विचार आपसे एकदम मिलता जुलता है, उसको हम स्वजातीय वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव ही है, सब लोग वैष्णव है, लेकिन सबके साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते। वैष्णव सोसाइटी में भी सबके साथ एक आराम से दोस्ती नहीं बनता है कि नहीं? उसमें भी फर्क जरूर पड़ता है। तो यहाँ पे बंदर कहता है मैं आपके साथ दोस्ती नहीं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माई हार्ट डजंट फील सेफ विथ यू। जब बंदर ने कहा मेरा हृदय पेड़ पे है, इसका मतलब क्या है? हृदय पेड़ पे कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है ना, मर जाएगा। लेकिन हृदय पेड़ पे है का मतलब क्या है? पेड़ वो स्थान है जहां पे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। आपके साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं। स्वजातीय वैष्णव मतलब कुछ वैष्णव है जिनके साथ आपका हृदय सुरक्षित महसूस करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका हृदय सुरक्षित महसूस नहीं करता है। होता है कि नहीं? वैष्णव सोसाइटी में होता है कि नहीं? मतलब कुछ भक्तों के साथ आपका हृदय जो है बहुत सेफ महसूस करता है, और कुछ भक्तों के साथ कभी भी कुछ भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे नेक्स्ट मालूम नहीं पड़ता है ना? थोड़ा सा अनसेफ महसूस करता है। इसको बोलते हैं स्वजातीय वैष्णव। हम सभी को एक तो ऐसा दोस्त ढूंढना चाहिए जिनके साथ हमारा हृदय सेफ महसूस करे, उनके साथ हमें दोस्ती बनानी चाहिए। तो बंदर, आप सोचिए पंचतंत्र का बंदर भी हमको क्या क्या सिखा सकता है ना? तो जब हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार के दोस्त बनाने चाहिए, तो हमें बहुत गहराई से इंस्पेक्शन निरीक्षण करना चाहिए। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे संबंध हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कौन आपके माता पिता है वो आपके हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं। कई हद तक किसके साथ आप शादी कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं। एक बार हो गया तो तब जाके पता चलता है कि कौन है ये व्यक्ति, बहुत बार शादी के बाद पता चलता है। एक दो मीटिंग्स में क्या पता चलने वाला है? आपके बच्चे कौन होंगे वो तो आपके हाथ में ही नहीं। कि कोई गौर नेता नाम देता है, थोड़े समय के बाद पता चलता है कि जगह में निकले, है कि नहीं? तो मतलब वो भी आपके हाथ में नहीं है प्रैक्टिकली। आपके नेबर कौन है आपके हाथ में है क्या? वो भी नहीं है आपके हाथ में। बहुत आपके ऑफिस में कलीग्स कौन होंगे आपके हाथ में है क्या? वो भी आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे संबंध जो आपके इस जीवन में है, जो सबसे नज़दीक वाले संबंध आपके जीवन में जो है, वो सब आपके हाथ में है ही नहीं प्रैक्टिकली। लेकिन एक संबंध जो आपके जीवन में है वो आपके हाथ में है। वो कौन? आपके दोस्त है, वो आपके हाथ में बिल्कुल है। उसका आप सही चयन करोगे
तब जाके आपका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सुधरता है। जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण दे सकता हूँ। बचपन में मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का था और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में रहता था और मैं किसी से बात ही नहीं करता था और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। लेकिन एक समय के बाद मुझे 2 दोस्त मिले जो मुझे मेरे सबसे नज़दीक दोस्त बन गए। उनके संग में मैं काफ़ी खुल गया और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आया सिर्फ 2 दोस्त होने से। हम सबको मालूम पड़ेगा कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दोस्त है जिनकी वजह से हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी बदलाव आया है कि नहीं? तो दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे जीवन के बदलावों में। जब हम बड़े हो जाते हैं एक हद में 20-30 के बाद जो है, कई बार हम दोस्त बनाना ही बंद कर देते हैं। क्यों? या तो टाइम नहीं होता है, या टाइम होता है तो सही व्यक्ति नहीं मिलता है, सही व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या करना है उस व्यक्ति के साथ समझ में नहीं आता है। तो बहुत लिमिटेशन हो जाता है एक 30 के बाद प्रैक्टिकली कि कैसे हमको दोस्ती बनानी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण हमें गीता से बता रहे हैं कि हम एटलीस्ट, बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति के साथ गहराई का संबंध एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मच्चित्त मलगद प्राण जो है, ये जो गहराई की बातें हैं आप कोई स्ट्रेंजर के साथ नहीं कर सकते, है ना? कोई रैंडम डिवोटी पकड़ लो किसी को और उनके साथ बैठ के बात करो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गुह्य बातें, गहरी बातें करने के लिए एक संबंध होना पड़ता है कि नहीं? एक लेवल का एक संबंध होना ही चाहिए, तब जाके हम कुछ डीप कनेक्शंस बना सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप सभी से कि एटलीस्ट आप एक संबंध में इन्वेस्ट कीजिए, 1 या 2 संबंध में इन्वेस्ट कीजिए। आपका कीमती समय, आपका सोच, आपका हृदय इन्वेस्ट कीजिए और सही व्यक्ति को चुनने के बाद उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि और गहराई का एक कनेक्शन बन सके, स्पेशली आध्यात्मिक कनेक्शंस इसके ऊपर। और साख्यम, ये गहराई के संबंध एस्टेब्लिश करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब भी लेक्चर्स देता हूँ, स्पेशली फ्रेंडशिप के मामले में जब भी लेक्चर देता हूँ, कोई ना कोई ये सवाल पूछता ही है। क्या है सवाल? पूछता है कि अगर हम सबसे अच्छे दोस्त हो लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो अच्छा ही नहीं हो, रेसिप्रोसिटी बराबर से नहीं करे, तो क्या करना चाहिए? तो बहुत बार हमको लगता है कि दुनिया भर की जो अच्छाई है हम में ही है और जो सामने वाला व्यक्ति है इतना बुरा है कि उसके साथ दोस्ती बनाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये जो वहम है वो हम सबके अंदर होता है कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे हमको लगता है कि हम ही सबसे अच्छे। सबसे बड़ा जो दुश्मन है साख्यम का, दोस्ती का, वो यही है, ये विचार ही है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हमको लगे कि हम परफेक्ट हैं। क्योंकि जब ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है, एक व्यक्ति था ज़ीयस, जो ग्रीक गॉड था। तो उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को 2 बैग दिया। एक बैग में उस आदमी का सारे गलतियां थी और दूसरे बैग में बाकी सबकी गलतियां थी। तो दोनों बैग उस आदमी को दे रहा था, लेकिन देते वक्त दोनों बैग को एक लकड़ी के ऊपर टंगा के ऐसा दिया उसने। लेकिन जब दिया, जो बैग जो उस आदमी को खुद का गलतियां था वो पीछे था और दूसरों का गलतियां वाला बैग सामने था, तो सामने क्या दिखेगा? तो इसलिए हम लोग दूसरों की गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट बन गए और अपनी खुद की गलतियां देख ही नहीं पाते। शास्त्र में इसको एक अलग उदाहरण दिया जाता है। बताया जाता है कि जब भी हम पैदा होते हैं हमें 2 चीज़ें दी जाती है, एक है आईना और दूसरा है चश्मा, लेंस। जो आईना है, दर्पण जो है, वो हमें अपनी खुद की जो रिफ्लेक्शन वो दिखाता है, लेकिन चश्मा क्या करता है? चश्मा आगे दिखाता है ना। तो हमें ये 2 चीज़ें क्यों दी जाती है, लेंस और मिरर? जो मिरर है
हमें खुद की गलतियां ढूंढने के लिए दी जाती है। जो मिरर के अंदर देखो, खुद की गलतियां देखो। और लेंस किसके लिए दिया जाता है? ताकि दूसरों में अच्छाई देखे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस को इस्तेमाल करते हैं दूसरों में बुराई देखने के लिए, और मिरर को क्या करते हैं, इसको देख के हम कभी भी मिरर में देखने के बाद कोई बुराई दिखाई दिखाएगा आपको, हमेशा लगेगा अरे यार इतना हैंडसम हूँ मैं, इतना खूबसूरत हूँ, है कि नहीं? मतलब चाहे आप कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, आप जब अपने आप को आईने में देखेंगे लगेगा बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो मिरर का जो है वो ऑपोजिट है। दर्पण जो है हमेशा अपने अंदर गलतियां ढूंढना वो महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अंदर गलतियां ढूंढेंगे तभी उस गलतियों को सुधार पाएंगे। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए अपने आप को दूसरों के दोस्ती के लायक बनाने की। जब हमको लगे कि ऑलरेडी हम परफेक्ट है तो परफेक्शन को और परफेक्ट क्या बना सकते हैं, है कि नहीं? जब हमें लगे कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तभी जाके हम सुधर सकते हैं, है कि नहीं? तो जो दोस्ती है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद पर्सनल डेवलपमेंट। इसलिए हम सबके पास एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए जो हमारी भलाई के लिए हमें कुछ सलाह दे, हमें कुछ टिप्पणी दे, हमें कुछ मार्ग दे। लेकिन आज की तारीख में सब लोग जो है टच में नॉट प्लांट बन गए, और थोड़ा सा भी कुछ बोलो भाग जाता है, बोले यार मेरे को नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति। तो ये हमारे अंदर जो अपनी गलतियों को स्वीकारना और उसको उसके ऊपर काम करना, ये जो क्षमता है वो ही चला गया है प्रैक्टिकली, है कि नहीं? और आजकल सब इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है ना? न्यूक्लियर फैमिलीज, अभी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर हो रहा है कि नहीं? बिकॉज इट इज़ द इनएबिलिटी टू हैंडल डिफेक्ट्स इन वन सेल्फ। क्योंकि लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर कमियां ढूंढने में सब सक्षम बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समय हमको बिताना चाहिए कि इस प्रकार के दोस्तों को कल्टीवेट करने में। तो मेरा ये भी सुझाव है कि आप लोग कभी ऐसा मिल सकते हैं कि आप सत्संग ही ना करो, बस एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए आ जाओ, जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस नहीं है, बट इट्स जस्ट अनऑर्गेनाइज्ड डिस्कशंस। थोड़ा छोटा ग्रुप्स बना सकते हैं जाकि लोग है ना एक दूसरे के साथ पहचान बना सके। परिवारों के बीच में, 2 परिवारों के बीच में एक सत्संग बन सकता है। ऐसा नहीं कि 100 लोग ही आने चाहिए सत्संग के लिए, 2 परिवार 4-5 लोग साथ में आ सकते हैं एक सत्संग के लिए, तो वो एक अलग प्रकार का माहौल बनता है। दीज आर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाते हैं तो हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होने लगता है कभी कभी, लेकिन वो सोशल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है हमारे मानसिक और हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। बहुत सारे आप सन्यासी देखेंगे, अभी भी हम देखेंगे बहुत सारे सन्यासी जो होते हैं वो चले जाते हैं रिट्रीट्स में, और ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं एक बार उडुपी में था और मैं प्रेम नदी प्रभु को मदद करने के लिए गया था। उनका तबीयत बहुत ही ख़राब था उस समय, और मैं वहाँ पे प्रेम नदी प्रभु के लिए कुकिंग कर रहा था और सब्जी ला रहा था, और पूरा दिन उनके साथ उनकी सेवा में था, प्रैक्टिकली 1 महीना। तो हम लोग वहाँ पे हमको पता चला कि पास में 2-3 और सन्यासी थे, निरंजन महाराज और धनुर्धर महाराज, और ऐसे 1-2 और थे सन्यासी। वो लोग शाम को मिल रहे, तो हमको लगा अच्छा है हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, और हर दिन शाम को मिलते थे वो लोग 1-2 घंटा, और हम लोग कोने में बैठ के बस देखते थे उन लोग क्या कर रहे हैं। 3-4 लोग बैठे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और क्या गहराई का डिस्कशन होता था, बाप रे! मैं पूरा एक नोटबुक भर के उनके डिस्कशंस को लिख रहा था। और ऐसा नहीं कि कोई प्रिपेयर्ड क्लास था, सब एक दूसरे को शेयर कर रहे थे अपना, उन्होंने क्या पढ़ा, बस जस्ट शेयरिंग चल रहा था। और हम दोनों को इतना मजा आया वहाँ पे, इतना अच्छा लगा, बोला यार ये क्या चल रहा है, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। 3-4 लोग ऐसे दोस्त साथ में बैठे और बस चल रहा है बातचीत।
तो इसको बोलते हैं सही में सत्संग। तो ये मास क्लासेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करो जो जिनके साथ आप हृदय से कनेक्ट करते हो, है ना। और ये ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई डिस्कशन होना चाहिए, जो आपका लेवल का है वो लेवल का डिस्कशन करो ना, है कि नहीं। तो इससे एक बहुत गहराई का संबंध बनता है। तो अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को के अलावा हमारे इंटरनल नीड्स, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में भी हमें याद रखना चाहिए। और खासकर ये सोशल नीड्स जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण नीड्स है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और क्योंकि ये नीड्स मीट नहीं होते इसलिए लोग जो है स्क्रोलिंग करते रहते हैं, क्योंकि लगता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरे जीवन में, कुछ तो एम्प्टी है, कुछ तो मिसिंग है मेरे जीवन में। और वो एम्प्टीनेस को भरने के लिए ना लोग क्या क्या करते हैं, बहुत लोग खाते हैं दबा के, इसको बिंज ईटिंग बोलते हैं। और कुछ लोग दबा के नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, घंटों घंटों देखते रहते हैं। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ सोशल नीड्स नॉट बीइंग मेट। जितना हमारा जो दुनिया है वो ऑनलाइन होता जाएगा उतना ज़्यादा ये सोशल नीड्स मीट नहीं होते। तो हमें मेहनत करनी चाहिए इस सोशल नीड्स को मीट करने के लिए। पहले के दिनों में बहुत आसान था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, हमारे घर में टीवी ही नहीं था, और टीवी था तो भी दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट, मतलब इसको देखने से अच्छा है देखो ही नहीं, है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन ही नहीं था तो हम सोशल हमारा काफ़ी डीप कनेक्शंस होते थे। लेकिन अभी जो है इतना हम लोग एंटी सोशल हो गए हैं प्रैक्टिकली कि कोई जाना नहीं चाहता। अभी मंदिर कौन जाता है आजकल, बहुत कम लोग मंदिर जाते हैं। क्यों? इतना दूर जाना पड़ता है। सब दिखता है ना यूट्यूब पे, फर्स्ट क्लास पूरा लेक्चर दिख जाता है। तो धीरे धीरे जो है हमारा जो वो गहरे के जो संबंध हो गए ना वो धीरे धीरे कम हो गए। तो इसलिए हमें एक एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम, और ये सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को अफेक्ट नहीं करता है, ये आपके रेगुलर लाइफ को अफेक्ट करता है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने एक आउटलायर्स करके किताब पढ़ा है, बहुत ही फेमस किताब है, बहुत सुंदर है। उसमें एक बहुत अद्भुत चीज़ मैं बताता हूँ। उसमें एक कहानी आती है जहाँ पे इन लोगों ने एक सर्वे किया, और ये बहुत ही बड़ा सर्वे था, 25 साल का सर्वे था। और इन्होंने क्या किया, 300-400 लोगों को सर्वे किया उन्होंने 25 साल तक। और ये लोग क्या थे मालूम है? ये लोग जीनियसेस थे। हमारा नॉर्मल जो लोग है, नॉर्मल आदमी, उसका आईक्यू लेवल होता है 70 to 80। जो एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट है उसका आईक्यू लेवल होगा 90। लेकिन जो एकदम जीनियस लेवल के हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 150। और कुछ लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल है 200। अब सोचो किसी का आईक्यू लेवल 200 होगा तो क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का, है कि नहीं। और इन लोगों ने ऐसे 300-400 लोगों का आइडेंटिफाई किया जिनका आईक्यू लेवल 150 के ऊपर था। और ये 300-400 लोगों को इन लोगों ने 25 साल तक स्टडी किया कि मतलब ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 300-400 लोग जो है सबसे बड़े बिलियनर्स यही होंगे, है कि नहीं। सबसे टॉप 300-400 बिलियनर्स देखेंगे, इनका नाम होना चाहिए। लेकिन इनके 25 साल के स्टडी के बाद पता चला इन लोगों में से आधे से भी ज़्यादा लोग प्रैक्टिकली दे नॉट एबल टू मेक एंड्स मीट ऑल्सो। मतलब नॉर्मल भी जीवन नहीं जी रहे, नॉर्मल से कम उनका पगार, उनका नॉर्मल से भी कम पैसा है उनके पास। ऐसे कैसे? इतना बड़ा जीनियस है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हमको सक्सेसफुल होने के लिए जीवन में सिर्फ बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, हमारे EQ, इमोशनल कोशेंट, हम अपना जो हृदय है किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए उनका जो EQ कैपेसिटी था बहुत ही कम था, दिमाग बहुत था, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करने का कैपेसिटी बहुत कम था।
भगवान ने एक चीज़ दिया तो दूसरा ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको होलिस्टिकली डेवलप होने के लिए हमें इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इस्कॉन में देखता हूँ कि बहुत भक्त जो है ये जो पार्ट है इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये जो इमोशनल साइड है उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये इमोशनल साइड जो है कम्प्लीटली निगलेक्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि आप थोड़ा सा समय निकाल के ये जो इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आप समय दीजिए। सिर्फ बाहर के लोगों के साथ नहीं, परिवार वालों के साथ भी। परिवार वालों के साथ भी एक दोस्ती बना सकते हैं। अभी बहुत सारे परिवार जो है एक दूसरे के साथ दुश्मन, जान के दुश्मन ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पूरा घर है, 4 लोग हैं, लेकिन सब एक दूसरे की जान खाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से दुश्मनी के साथ इस तरीके का हृदय जो है दूरी के साथ रह नहीं सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ अभक्तों के पास है, ये भक्तों के साथ में भी ऐसे ही है। बहुत सारे फैमिलीज में देख रहा हूँ मैं, गहरी दोस्ती नहीं है। तो ये साख्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो गहराई की जो दोस्ती है वो इस्टेब्लिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए समय निकालिए और इसको आप प्रायोरिटाइज प्लीज कीजिए। और इसका फर्क जो है सीधा आप अपने जपा में देखोगे। इट विल मेक अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इफ योर हार्ट इज इन राइट स्पेस। अगर आपका हृदय जो है खुश है, आप बहुत आनंदित महसूस कर रहे हो, जैसे सिंपल चीज़ है, आप एक भक्त के साथ, किसी आपके दोस्त के साथ एक अच्छा 1 घंटे का कन्वर्सेशन करो, उसके बाद कितना अच्छा लगता है कि नहीं? इट जस्ट मेक्स आपको द हार्ट फील्स गुड। So these deep conversations are very important for us to do very well in our spiritual life also. Thank you very much. Hare Krishna. We take some questions. Stand up a little bit. I'm not supposed to sit for too long. Anybody has any questions? You can pass the mic. Yes, sir. Thank you very much for a wonderful class, Prue. Prue, I just we have some good relationship with some equals also and with some seniors also. But I just with senior also we have very good intimate relationship also. But due to our nature, we behave with them friendly or openly and straightforwardly. So is that okay, or how should we behave with them? See, if you have spent 5 years in the moment, or 5 years, about 10 years, 15 years in the moment, this categorization of senior, junior, equal, now it starts blurring, right? एक 15-20 साल आप हरे कृष्ण मूवमेंट में हो तो आपका सीनियर जो है वो प्रैक्टिकली इक्वली बन जाता है, समझा ना? तो एक लेवल के बाद जो है वो जो क्लियर कैटेगराइजेशन होता है ना, वो क्लियर नहीं होता है, वो धुंधला हो जाता है, विच इज़ फाइन, ठीक है? तो अगर आपके जो सीनियर जिनके साथ आप समय बिता रहे हो और आपका गहरा दोस्ती हो जाता है, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं है, आप चिंता मत करो सीनियर जूनियर का, वो चला गया समय, ठीक है? शुरुआत के दिनों में सीनियर जूनियर जो है बहुत क्लियर कैटेगराइजेशन होता है, बट एक बार आदमी 10 साल रह गया यार, उसको सब पता है, अभी और क्या रह गया है पता चलने के लिए, उसको सब पता चलता है। तो द सीनियर शुड स्टार्ट एक्चुअली ट्रीटिंग दैट पर्सन एज इक्वल ओनली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थोड़ा सा दैट पर्सन हु इज may feel that respect, but I'm saying that there is no clear categorization beyond a certain number of years. So obviously we should be respectful always. It's not that we should be disrespectful. Even with equals, we should be respectful only, because that is what Vaishnava culture is about, right? There's an element of respect which is always there. But it can be informal depending on your relationship. That's what I'm trying to say. And it's okay to go into an informal discussion, but if the connection is established. Just when we discuss some points, some critical or some discussion,
So is it okay to give opinion which is not matching with the senior devotees? I mean to say we want to give honest feedback and See, asking tough questions is important. The maturity of the senior person is to be able to handle those tough questions, right? So these tough questions is what makes the discussion even more interesting. Correct. So if it is always that the person who is senior feels, "Arey, don't ask me any questions or don't challenge me," then how will there be samvad? The discussions happen when there is challenges, there is opposition, there is a whole discussion. Like you look at any of our scriptures, when Shukdev Goswami is speaking something, and Parikshit Maharaj is not comfortable with it, he asks questions very clearly. He said, "You said this, but what does it mean? Why you're saying exactly like this?" So Parikshit asks questions. There are so many. Like when if you look at Agastya Samhita, Agastya Muni is giving an opinion. His disciples, throughout the Agastya Samhita, it is always the disciples are cross questioning him based on their knowledge. They're saying, "Hey Guru, you said like this, but this is our understanding. How can you say like this?" So this respectful cross-questioning is what makes Sanatana Dharma so beautiful. In Abrahamic religions, you cannot question. You go to a mosque and ask one question, that's it. You're finished. You cannot ask. But in Sanatana Dharma, that's the beauty of Sanatana Dharma. Bali Maharaj questioned his guru, Shukracharya, and he said, "You're wrong." He didn't follow his guru. So it's not that Bali Maharaj is offensive. And obviously Shukracharya understood also I am wrong somewhere. Right? So we should question, we are free to question, just that when we question, we should be in a respectful tone, that's all. Bali Maharaj did not follow what Shukracharya said, respectfully. So that's what I would suggest. Yes, sir. प्रभु जी ने बताया कि सोशल नीड्स वी ऑल हैव सोशल नीड्स तो सत्संग के अलावा भी वी शुड हैव गैदरिंग वेयर देयर इज नो लेक्चर एंड वी डिस्कस अदर थिंग्स बट दैट इज वन साइड अदर साइड अनदर एक्सट्रीम इज दैट वी आर नॉट एडवांस दैट लाइक महाराज का आपने एग्जांपल दिया दे वर डिस्कसिंग कथास ऑल दिस थिंग वी आर नॉट दैट एडवांस दैट वी स्पेंड 3-4 hours discussing that part. We end up discussing gossiping on politics and other things. So there is also danger. So we keep on meeting for these social gatherings and not for satsang. Then there is also a danger at our level. So in that situation, what to do? See, I would say that it can be some normal stuff also. It's not that normal stuff is not allowed at all. It can be some normal stuff, but there should also be planned idea of discussions. Like, two people can be reading one book and then come and share notes of what I like, what you like, So it could be something where you plan and do. So you already hear some lecture and then come and discuss it together. You already read a particular book, you come and discuss it together. You already have been thinking about some subjects and you want to have a discussion with that person, then so it has to be some planning. Just like when we go with friends who are, non-devotee friends, there is some level of planning that happens even at that time, right? What we are going to do, right? So some level of planning has to happen for satsang to be, till we reach a particular level of maturity that it can flow smoothly. Thank you, Prabhuji. So you said about Guru being a friend, and I've read that Guru is our dear friend. But when it comes to Guru, we have reverence, we have respect. So how do we actually, consider him as a friend, and how do we invest in that relationship as a friend? Yeah. So it depends on what type of Guru. I was not specifically talking only about Diksha Guru. It could be Siksha Guru also. Some people have the fortune of having that relationship with the Diksha Guru also, right? So it depends on your space, the situation in which you are. So for those who are a little more fortunate, they can have that kind of a friendly relationship with the Diksha Guru also. But for those who are not at that level, or those who may not have the fortune of doing that, at least with the Siksha Gurus they can have that kind of a
more friendly relationship. As I said again, when I'm saying friendly, I'm talking about respectful friendliness, not whimsical and not disrespectful, not informal. So there has to be an element of respect, but it is possible. Especially as I said, as you grow in your relationship, it becomes much easier. Like when in the initial phase of my connection with Radhanatha Swami Maharaj, I used to be scared to even ask him things. But over a 10-year period or 10-12-year period, I did so much service with him. At some point, there were situations where I disagreed with him also, and he accepted it nicely, and he would be open to me saying that and I disagree with a certain point, and he never got offended or anything like that, because we were talking at a particular level at which the comfort was. So then it takes many years of serving together that reaches that point. So till you don't reach that point, you can't just jump. It has to be something that is very natural. It has to be something that is developed over time. Hare Krishna Prabhu. So my question was, can your partner be your Priya Sakha and the first category what you mentioned? Is it okay, or should we have somebody else for the first category? That's the ideal thing. If your husband can be your Priya Sakha, that's the ideal, because in fact, Mahabharata speaks about that. The first connection between a husband and wife has to be that of Maitri. There has to be friendship. So if your best friend is at home, nothing like it. But Prabhu, then so Priya Sakha is somebody who acts like a mirror, right? Correct. So then you're going to be triggered all the time. Yeah. So that's why. That is where there has to be an element of respect. Yeah. So you have to tell the truth, but it has to be told in a way that is not hurtful. Like if you study the Ramayana, Sita categorically several times pointed out mistakes of Ram, specifically gave him feedback. But Ram had the ability to handle the feedback well, and Sita had the ability to put that in the right words. Right? It's not like she was not giving the feedback clearly, she was giving clear feedback, but in a way that didn't hurt him. And when she did hurt him, she made sure she made up for it. She was sensitive enough. So there will be points when you hurt one another, but you also have to be sensitive that I have done it and I need to make up for it. That's what. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा। तो जी हमारे बच्चे लोग कॉलेज जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, या हमारे फिर उनके जो डीओटी हम लोग कैटेगरी बना दी है कि नॉन डीओटी है, डीओटी है, डीओटी के साथ नॉन डीओटी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है। कि हमारे डर लगता है कि हमारे फैमिली को या वाइफ को या मुझे कि यार इसके साथ बच जा, फिर वो कैसा कनेक्शन करेगा? ये कि डीओटी के साथ ही कनेक्शन करना है कि नॉन डीओटी के साथ कनेक्शन करना है? जो बच्चे हैं उनको आप छोड़ दो, उनको जो करना है करने दो। बच्चों को आप छोड़ दो, वो जब उनका टाइम आएगा वो कर लेंगे डिसाइड खुद। क्या है, हमने अपना खुद का चुनाव किया है ना, ऐसे नहीं कि किसी ने हमको फोर्स किया ना डिवोटी बनने के लिए। हम खुद डिवोटी बनना चाहते तो डिवोटी बने। तो वैसे ही बच्चों को भी वो फ्रीडम होना चाहिए, उनको जब बनना है वो बनने दो उनको, बस उनको छोड़ दो, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दो, उनको प्रेम दो, उनको आप मेरा एटलीस्ट इतना ये अनुभव है कि बच्चों को आप जितना फोर्स करेंगे ना वो भागेंगे उतना दूर। उनको आप फ्री छोड़ देंगे, उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे और वो छोड़ देंगे तो वो खुद चुन लेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस को। बट जब उनको प्रेशर लगता है तो वो भागते हैं। इट्स लाइक वो टीनेज फेज ऐसा होता है कि वो रेबेलियन का फेज है, जो आप उनको बोलो करने को वो नहीं करेंगे, समझे ना? वो ऐसा जस्ट टू प्रूव दैट आई कैन मेक माई डिसीजंस। तो वो लेवल, वो स्टेज पे ना बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो खुद अपना चुनाव कर लेंगे। और आप देखोगे कि एक समय तक वो इधर उधर भागते हैं और उसके बाद वो लाइन में आ जाते हैं बराबर से। तो एक 20-21 के बाद वो लाइन में आने लगते हैं। तो 15-16 से 21 तक बहुत रिबेलियन होता है, उनका मन बहुत ही अस्थिर भी रहता है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे वो start falling in place. As a parent, the best thing you can do for your child is give love. Give love, give encouragement, give support.
दैट्स ऑल. ऑफ कोर्स यू शुड हैव डिसिप्लिन. ऐसा नहीं कि उनको कोई डिसिप्लिन नहीं होना है. डिसिप्लिन होना चाहिए, बट द डिसिप्लिन शुड नॉट बी choking them. So we'll take one last question. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for nice class. Prabhuji, when we are in emotions, different emotions we come through. So sharing those emotions with others is not always we feel कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उसको ऐसा बोलूं उसको क्या लगेगा. और इवन इफ उसको पता है मेरे फ्रेंड को कि ये ऐसा ही है, वो बहुत इमोशन में रहता है, थोड़ा बात कर लो, बट फिर भी वो अपने तरफ से अपने को मतलब एनकरेज करने के लिए चाहता है, बट हम उसको भी अवॉइड कर लेते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ हम शेयर कर पाएँ. ये अंडरस्टैंडिंग को कैसे इस स्तर पर समझे. या सब कुछ सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है, जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, स्पेशली फियर, जो कुछ इमोशन जो है जो आपको पैरालाइज करते हैं, वो आप शेयर करोगे तो इट्स ईजियर टू हैंडल इट. कुछ इमोशन जो होते हैं जो आप शेयर करोगे तो आपके लिए आसान पड़ता है हैंडल करना, लेकिन आप खुद भी हैंडल कर सकते हो तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट शेयर करने से थोड़ा सा आसान पड़ता है हैंडल करना. समझा ना? ऑफ कोर्स यू शुड नो whom टू शेयर इट विद. सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और स्पेशली उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए जो आपके इमोशंस को सीरियसली न ले. समझा ना? जो आपको सीरियसली न ले उसके साथ शेयर किया है ना, तो वो मजाक बन के रह जाएगा, और या वो आपके वीकनेस का एडवांटेज ले लेगा. तो शेयर उसी व्यक्ति के साथ करो जिसके साथ आपको कॉन्फिडेंस है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा. ठीक है? थैंक यू. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा मेरा सोच विचार रखने के लिए, और खासकर मदन मुरारी प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आप सभी के बीच में इस सत्संग में भाग लेने का मौका मिला. बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. थैंक यू शुभविलास प्रभु, आपने समय निकाल के आए और हम सबको आपने संबोधन किया, और बहुत सारे जो हार्ट से आए हुए क्वेश्चंस का भी आंसर किया. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. हम धन्यवाद बोलेंगे 3 बार हरि बोल के. हरि. थैंक यू. हरे कृष्ण.